yet little naughty, yet little khatti meaty sort of a character before this. सब लोगों को पता है कि ये साला उधार लेता है और वापस नहीं करता है. When he's come to just stay at our house, bin bulaya mehman types. Sangi is about three friends and their journey together. They're best friends from childhood, and how money comes in the middle of them. And it's about figuring out how, whether, money versus friendship, what is important. So there's a bit of emotion, there's a lot of laughter, and it's just a really wholesome family entertainer. मुझे सुमित कुलकर्णी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे स्क्रिप्ट भेजी और जब मैंने पढ़ा तो मैं आई इमीडिएटली लाइक द स्क्रिप्ट एंड देन आई हैड अ मीटिंग विद देम और एक छोटा सा नरेशन किया. आई डोंट नो, एक इंस्टिंक्टली कुछ मुझे लगा कि यार इसमें कुछ है, मतलब आई डोंट नो वो क्या चीज़ थी एग्जैक्टली लेकिन कुछ एक स्क्रिप्ट में एक ऑनेस्टी थी, एक प्योरिटी थी और एक मतलब मज़ेदार तरीके से दिल खोल के लिखी हुई एक स्क्रिप्ट थी. तो मुझे लगा कि यार आई शुड बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट और आई इमीडिएटली सेड येस. एंड जब मैंने हाँ करी फिल्म को उसके 10-15 दिन, हफ्ता 10 दिन में वी इवन स्टार्टेड शूटिंग फॉर द फिल्म. सो इट वाज दैट क्विक and I had a great time working on the film, and I met some amazing people on the sets. इनको तो मैं पहले मिल रहा था लेकिन ये इनके साथ में काम पहली बार करने का मौका मिला जो कि बहुत बहुत मजा आया. I wish we had more scenes together. I know, right? Yeah. So for me, I think Sumit sir, of course, got in touch with me for the film and sent me the script, and I read it, and I was quite excited about playing Mohini, first of all, because I don't think I have done such a fun, sweet, yet little naughty, yet little khatti meaty sort of a character before this. And though I absolutely love comedy, watching it, and also I think in real life, people who know me, my family calls me entertainment channel, so that just comes really naturally to me. So I was quite excited of putting that side of me in front of people, and I've had a ball shooting this film because this guy, I've just known him a little bit before we started shooting, but everybody else on the film, all the actors, even the crew, it was like a non-stop relay of laughter that was happening on set, and it was just fantastic. It was you normally go to work in a certain mood and space. This was like, I don't think, of course we were at work and we were getting everything done, but it was with so much love and laughter that it just made it such a memorable experience for me. मेरा रोल एक बमन कुलकर्णी मेरे कैरेक्टर का नाम है जो was going through a rough phase in his career. उसका लास्ट बिजनेस जो है it didn't do well because of the lockdown, and now he's planning to start a new business and he has no funds to start his startup. तो वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है और सब लोगों को पता है कि ये साला उधार लेता है और वापस नहीं करता है. तो किसी तरीके से वो एक दोस्त के घर में घुस जाता है जो कि करण है, एंड विद्या प्लेस करण's वाइफ मोहिनी. और कैसे फिर जब दोस्तों के बीच में पुराने बचपन के दोस्त हैं जो साथ में बड़े हुए स्कूल में, कॉलेज में, और अब अपने अपने काम में लोग बिजी हो गए. 2 of the friends have made it really big and I'm the one who's left behind. तो वो अब फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है अपने काम में और वो दोस्तों की मदद लेने की कोशिश कर रहा है. और जब दोस्तों के बीच में पैसा आता है तो फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ तो है. I play Mohini. Mohini is Karan's wife. Karan and Baman are best friends from childhood, and so basically, of course, it's a lovely little space that I have with Karan. He's a successful businessman, of course. I want to also start something of my own. So his track with me is this loving, very, very loving and caring husband-wife. And then, of course, I've also made him a little henpecked. So I tower over him at certain times, especially when he puts his, he sort of butts in at every moment. He's come to just stay at our house, bin bulaya mehman types. And there's a track with me with my mother-in-law, which is also slightly like there's a little bit of, khatti mitti mirchi in that space.
And so this is just one of those really lively, full of uh, how do I say, full of excitement, full of love, full of happy moments, yet a little gets ticked off kind of easily because of him. And so there's a lot that I could explore for within Vidya for Mohini in this one, which is why I was really happy playing it. Big Depends. role in a big film, yeah. Chalo, why not? See, the thing is, I always say कि जब आप ड्रीम करते हो ना, why you like so how do you concise your dreams? Dream big, man, and let it happen. It will happen. Yes. Yeah, dream बड़ा big. रोल, बड़ी फिल्म, सब कुछ बड़ी से बड़ी फिल्म, बड़े से बड़ा रोल. Central character in a super successful film, in a incredibly beautifully written film, performed Made really by an well by amazing me. director. Yeah, and phenomenal performances by us all, Yeah, especially us. especially us. ये तो अभी टाइम बताएगा जब फिल्म रिलीज होगी. Yeah, actually challenging तो है, बहुत चैलेंजिंग है. but I think it's बट देखिए मंजुम्मल बॉयज वो कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, बट इट डिड सो वेल एट द बॉक्स what a ऑफिस. film, ना? व्हाट एन अमेजिंग Yeah, फिल्म. really. बहुत ही कमाल. और मतलब बॉम्बे में भी, मतलब इवन इन मुंबई इट डिड सो वेल. Yeah. तो फिर एक मलयालम फिल्म हो. और अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आप यही सोचते रहोगे कि अच्छा फिर हमको OTT पे ही जाना चाहिए. तो कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आपको फल ही कैसे कहाँ से मिलेगा? So let's try, and we're hoping that Yeah. you like what we put out there. It's honest, it's real, it's fun, and everybody likes to have fun, right? Yeah. So और ये इसका थिएटर में जाने का एक रीजन ये है कि अगर आप जब थिएटर में दोस्तों के साथ जब आप जाएंगे नए फिल्म देखने, तो वो एक कलेक्टिव मजा जब आपको वहां पर मिलेगा सिनेमा हॉल में, वो हाँ, OTT पे हंसने फोन का, में देख के मजा नहीं आएगा, या लैपटॉप पे आप देखेंगे उसमें मजा नहीं आएगा. बिग स्क्रीन में विद फ्रेंड्स सबसे बेस्ट Experience है. एंड एक्सपीरियंस. yeah. क्यों नहीं मैं काफ़ी जिन्होंने चेंज की मेरी लाइफ ऐसी, अगर मैं 3 फिल्में बोलूँ तो उसमें से एक फिल्मिस्तान है विच कम्प्लीटली मतलब that film is closest to my heart, That was and your it will first always film? remain so. Was First the first film in the film? main lead. In हाँ. the main lead, yeah. And और एक फिल्म है and of course The Family Man, क्योंकि वो मतलब Family Man changed things for me for good, and मतलब अभी जो भी प्यार मिल रहा है सब कुछ Family Man की बदौलत है. और अगर तीसरी फिल्म बोलूँ जो मेरे बहुत करीब है, उसमें मैं 2 नाम लेना चाहूँगा, एक दरबान और तरला, which I immensely enjoyed doing, and जिनके साथ में मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्ट है. एंड आई वुड रियली वांट टू ऐड संगी, क्योंकि इसके साथ में मेरा एक बहुत भयंकर पर्सनल कनेक्शन है. जो मेरा कैरेक्टर है बमन में, आई हैव बीन थ्रू दैट फेज इन माय लाइफ. मैंने भी लोगों से बहुत उधार मांगा, मैंने भी मतलब बहुत लोगों से मतलब रिजेक्शंस लिए, मैंने भी बहुत डोर स्लैम्स झेले हैं. और वो सारा जब मैं ये फिल्म कर रहा था तो वो सब मेरे दिमाग में था, और एंड इट रियली हेल्प्ड. अब ऐसा लग रहा है कि यार थोड़े और रिजेक्शन होते तो ये मैं और अच्छे से करता. लेकिन या I think for me, of course, for the first one is going to be Chak De India, which changed literally everything in terms of the movies for me. लोगों को आजकल पिक्चर के नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन लोगों को चक दे इंडिया की विद्या शर्मा इंडिया याद है. सो अभी तक 17 साल हो गए, पर फिर भी अभी तक प्यार वैसा ही है, वैसे ही बरकरार है. तो that was literally like a blessing that never stops giving. Second, I think was of course this Mismatched, जो अभी तो मैं यही कहती हूँ 30-35 प्लस लोग अभी तक मुझे विद्या शर्मा इंडिया बुलाते हैं, और जो 13 प्लस है जो हमारा जेन जी है वो अभी मुझे जीनत करीम बुलाने लग गया है. तो I'm just for all the seasons I just am so freaking Instagram पे grateful. भी मेरी स्टोरी देखे किसने, ओह यू आर वर्किंग विद जीनत करीम. अरे वाह. Yeah, Super. so it's just too, I mean, my heart is full. अभी आप release डॉक्टर हुई है. अरोरा में भी बहुत कमाल है. I was just going to. The third one, which unfortunately not too many people saw, but जिसने भी देखा है has actually messaged me, commented me, and people keep asking me, Dr. Aurora 2 कब आ रहा है? Sony Live पे है. वो जो कैरेक्टर था और वो जो शो था मेरे लिए, it was just मैं एक बात बताऊँ, 11 साल पहले मैंने रॉकस्टार जब देखी थी, तब I had
said कि मुझे ना इम्तियाज़ अली सर के साथ काम करना है, whatever come, I have to work with this director. And I was just very very fresh and new in the industry at that time. और 11 साल बाद I got offered this part, literally you know the central part opposite Kumudji. And what an experience that was, working with Imtiaz sir, his entire team, Archit who was directing me. मुझे पता नहीं कोई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है आपको मिल जाते हैं क्योंकि वो आपके अंदर कुछ जो है उसे हील करना चाहते हैं. एज एन आर्टिस्ट मुझे आई फील इट्स इनक्रेडिबल कि जो हम काम करते हैं वो कहीं ना कहीं, आई थिंक सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर से ही आते हैं. तो कहीं ना कहीं जो स्पेसेस में, जो प्लेसेस में आप जाना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत दुखता है आपको, वहाँ सर्टेन कैरेक्टर्स आपको लेके जाते हैं. और वैशाली का एक किरदार था, वो मुझे वहाँ जाना पड़ा उसे परफॉर्म करने के लिए. एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड ऑफ कोर्स नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर नेम, ऑफ कोर्स संगी, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई लव मोहिनी. मुझे बहुत पसंद है मोहिनी, मुझे लगता है आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगी क्योंकि उसमें जैसे कि मैंने कहा उसमें एक लाइफ है जो मुझे लगता है एज विद्या मुझ में भी है, जो कुछ करने का, कुछ यू नो जो ना है वो ना है, जो मुफट है, मतलब शी इज सच अ ब्यूटिफुली राउंडेड पर्सन. आई लाइक दैट. जितना प्यार अपने हस्बैंड के साथ करती है उसे उतना ही यू नो क्या कहते हैं उसे, उतना ही उसको कंट्रोल भी करती है. या कंट्रोल भी करती है, लेकिन इट्स ऑल मस्ती, उतना रोमांस भी है, उतना लव भी है. इट्स लवली. प्रोसेस ऑफ एक्टिंग एंड लर्निंग डायलॉग, ये तो मतलब मैं आई एम एन अनट्रेन्ड एक्टर. मैंने कोई मतलब ना मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, ना मैंने कोई फिल्म स्कूल गया हूँ, ना ड्रामा किया है, ड्रामा स्कूल गया हूँ. मैंने जो भी सीखा है, ये मुझे बोलते हुए कोई गर्व नहीं होता है. मैं आई विश कि मैं मतलब नाटक मैंने किए होता है या मैं फिल्म स्कूल गया होता, क्योंकि आई डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर एट द एज ऑफ, मतलब व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 33. योर स्टोरी एंड माय स्टोरी इज लाइक सेम टू सेम, इज इट नाउ इन लाइफ? तो उसमें मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, या वो मेरे पास उतना लग्जरी नहीं थी कि मैं 2-3 साल और सीख कर आऊँ, और क्योंकि तब तक शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था. तो मैंने जो भी सीखा काम करते करते, ऑडिशन देते देते, ऑडिशन मेरा रियाज था, और लाइनें याद करना ये तो हर एक्टर का काम है, तो वो तो सबसे पहले मैं ज़रूर करता हूँ. और आई ऑलवेज गो वेल प्रिपेयर्ड ऑन द सेट्स. मैं वहाँ जाके देखता नहीं हूँ कि हाँ क्या लाइनें हैं, वो उतने बड़े अभी अपन हुए नहीं हैं. और ना कभी होंगे. हाँ, ना मुझे, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना चाहता हूँ कि हमेशा पूरी तैयारी करके हम जाएं. सेम विद मी. आई एम नॉट, मैंने भी एक्टिंग काफ़ी लेट शुरू की, तो आई विश आई हैड गॉन टू फिल्म स्कूल, लेकिन वो हुआ नहीं. लेकिन मुझे लगता है मैं जब मेरे पास थोड़ा वक्त होता है, जब काम नहीं होता है, तब मैं कोशिश करती हूँ कि कोई वर्कशॉप्स कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, मुझे और करना ज़रूरी है. तो आई कीप एनरोलिंग फॉर वर्कशॉप्स. आई थिंक जो वर्कशॉप्स सारे बॉम्बे में होते हैं ऑलमोस्ट, और इवन बाहर एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे वर्कशॉप्स पे मैं कभी ना कभी गई हूँ. पिक्चरें रिलीज़ हो गई हो, सीरीज़ रिलीज़ हो गई हो, उनके बाद भी सारे न्यूकमर्स के साथ भी. आई थिंक 2 महीने पहले आई डिड वन वर्कशॉप वेयर देयर वर रैंक न्यूकमर्स एंड आई वाज द ओनली वन हु हैड लाइक 20 इयर्स ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री. पर मुझे लगता है कि सबके पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, और हर फिल्म में, हर एक्टर के साथ, हर यंग एक्टर के साथ, न्यूकमर्स के साथ भी, आप जब जाते हो सेट पे या ऐसी वर्कशॉप में, किसी न किसी से आप कुछ ना कुछ लेके ही जाते हो. सो इट्स आई फील लाइक इट्स अ लर्निंग एवरी सिंगल डे. इन टर्म्स ऑफ लाइंस, मुझे याद करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं स्क्रिप्ट लेके उसके ऊपर बैठती हूँ, और फिर ना ही मेरी लाइंस, मेरे को एक्टर्स की लाइंस भी लर्न करके आ जाती हूँ. सो आई नो आई एम फुल्ली सेट. सो या आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ऑल्सो, मुझे ऑल्सो लगता है कि जो कैरेक्टर्स हम प्ले करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होते हैं, या हमने देखे हुए होते हैं, क्योंकि सब कुछ जो आ रहा है वो आपके अंदर से ही आ रहा है. तो देर आर वेज एंड मीन्स. अगर कहीं आप स्टक हो जाए तो उसके लिए आपके पास मेथड्स है, पर अदरवाइज हर एक सीन का, हर एक फिल्म का और हर एक सीन का भी एक ग्राफ होता है, जिसे आप अगर उसके बीट्स ले लें, उसको जो आपका,
मुझे ये भी बहुत लगता है कि जो हम 10 साल पहले थे या कुछ साल पहले थे, जितना आपकी ज़िंदगी में आप एक्सपीरियंस करते हो ना, उतना आपको आप एक बेहतर एक्टर बन सकते हो. यू जस्ट हैव टू बी अवेयर एंड ऑब्जर्वेंट. हमारी फिल्म संगी 17 जनवरी को रिलीज हो रही है आपके नज़दीकी या दूर के सिनेमाघरों में. तो आप लोग प्लीज जाके देखिए. Please. हमने बड़ा मजा किया है इसे बनाते हुए और आपको बड़ा मजा आएगा देखने में. Absolutely. So go watch our film Please. Sangi Sangi. in a theater near you.